Three, two, one, go. All the best. We are live now. Hi guys, really sorry for the delay. Actually, we had some technical glitch as usual. Really sorry guys. Welcome to a new episode of Auto Talk. Today we'll be talking about a very interesting topic. Like most of us have a lot of questions about. So we'll be answering the questions once we convey the total messages, total content that we have, all the news and all the updates that we have regarding the same thing. Yes, guys, it is regarding the Bharat Stage 6 BS6 emissions, norms and new safety regulations that have been imposed and implemented to the cars from 1st April 2020. So, guys, starting with basically what BS6 is. So, BS6 is basically Bharat Stage 6. Every 3 to 4 years, we have a revision in the norm system in the whole country. It is implemented nationwide, has to be followed by all the manufacturers in the country. So it is basically derived from the Euro 6. Euro 6 is nothing but similar standards that have been implemented throughout the Europe. It is mostly implemented regarding the emissions that the vehicles make so that they don't damage the environment as well as the human health on a day-to-day basis. So we have another three people from my team who can guide us through some specifics. I'll start with the same thing. I'll share a couple of details regarding the norms and what are they, how they have been implemented. So basically, every car, every segment of vehicles, starting from two-wheelers, leading to tractors, including all types of four-wheelers, three-wheelers, every type of vehicle that uses gasoline, diesel, CNG, or LPG as their fuel type. Guys, this does not include the electric vehicles as we already have a fair idea as to why. So all these cars that come through all the tests that the car manufacturers conduct themselves, the ARAI that conducts the emission norm test with a couple of vehicles from the manufacturers are picked up, tested through idle conditions as well as regular running conditions. Like mostly, like in today's time, what we all crave about is why diesel cars are expensive, why petrol is so expensive. Everything we'll be covering, but hopefully we are able to convey the messages, take your questions within the time limit we have. So over to you, Shrey, Vansh, or Rahul. Anyone who would like to take over with the specific topic? Hello, people. Good evening. I hope that you all are safe at home and your family is also safe. So, as Akshay discussed that today we'll be briefing you about the BS6 engines that have been introduced in our country. तो ब्रीफ करने से पहले मैं आपको एक बेसिक डिफरेंस बताना चाहूँगा एक BS4 पेट्रोल और डीजल और एक BS6 पेट्रोल डीजल इंजन के बारे में. तो बेसिकली जो गवर्नमेंट ने नॉर्म सेट करे हैं फॉर अ BS6 engines, those are very different from a BS4 engine. For example, if you talk about a पेट्रोल इंजन में जो नाइट्रस ऑक्साइड एमिशंस होते हैं जिनको शॉर्ट में नॉक्स एमिशन कहा जाता है, तो पेट्रोल में वो एमिशंस 80 mg पर किलोमीटर के लिए अलाउड हैं. Whereas in a BS6 petrol engine, those have to be reduced to 60 mg per kilometer. Please do note these words, 80 mg to 60 mg. Now, if we talk about a diesel engine, the NOx emissions earlier in a BS4 engine were 250 mg per kilometer. And now the government has asked to reduce it to 80 mg per kilometer. So this vast difference in the NOx emissions of a diesel engine is the only main factor that leads to the high cost of validation, because you need much more manpower and you need more amount of money to validate, to test, and to bring that BS6 compliant engine into To the country. bring that pollution down, basically. Yes, Right. yes. Next, I would like to tell you what is the difference between a BS4 fuel, petrol or diesel, and a BS6 fuel. So, what the crude oil companies
do, they add an additive to the crude oil, which is called sulfur. So this sulfur is used as a lubricating agent wherever your fuel goes. So now, because of this sulfur, there are sulfur oxides released into the environment. So government has also asked that along with the engine, which is a BS6, you also need to have a BS6 fuel so that your vehicle can be BS6 compliant. Now, in the BS6 fuel, government has asked to reduce the sulfur content. So earlier in a BS4 fuel, sulfur content was 50 mg per kilogram. And now it has been reduced to 10 mg per kilogram, which is an 80% drop. So this is the That means if you add BS6 BS4 fuel to the BS6 engines, does that mean कि BS6 के norms पूरी तरीके से follow नहीं हो पा रहे या imply नहीं हुए हैं उस गाड़ी पे? correct. So to be, as I said earlier, to be a BS6 compliant vehicle, you need to have two things. One, a BS6 engine, and two, BS6 fuel. That is the only that are the only two things you need to have for a BS6 compliant vehicle. Moving on to some price factors, like is the fuel expensive? The BS6 fuel, obviously, no. BS6 fuel is not at all expensive, as the government has implied that there will be a daily change in the fuel prices across the country. So it applies to both the BS4 and the BS6 engines. And I also forgot to tell you that there is now BS6 fuel available on all petrol pumps all over India. So even हाँ, if your क्योंकि car, 2020 में लागू हुआ था BS6, तो अब तो आपको जो भी पेट्रोल पंप पे जो भी फ्यूल मिलता है सारा BS6 कंप्लायंट। okay, yeah. और सारी व्हीकल्स So वगैरह So भी अब do we? Sorry. सारे Please व्हीकल्स continue. वगैरह भी जो हो गए हैं वो BS6 नॉर्म से ही है। वो कोई अब पुराने व्हीकल्स BS4 का कोई नॉर्म वाला ही ना व्हीकल है ना बाइक हाँ, वगैरह कोई भी यूज करता है। BS4 की सेल्स तो 2020 में जब उस टाइम हाँ लॉकडाउन चल रहा था, काफी मैन्युफैक्चरर्स को काफी लॉस भी हुआ उस चक्कर में। बट correct. BS4 सेल्स व्हीकल्स की 2020 1 अप्रैल से टोटल सेल बंद हो गई थी। But please mind that if you have a BS4 vehicle, you can very well use a BS6 Yeah, you can fuel in totally that. use it with the BS6 It will fuel not, also. yeah. क्या BS6 Yeah, basically means cleaner fuel yeah. and a cleaner impact to the environment. So if you are using, अगर आप अपनी BS4 गाड़ी में BS6 का फ्यूल डाल रहे हैं, आपकी गाड़ी को कोई हार्म नहीं होएगा. बट एट द सेम टाइम अगर आप अपनी गाड़ी BS6 गाड़ी में BS4 का फ्यूल डाल रहे हैं, तो आपको लॉन्ग रन में जाके इम्पैक्ट होएगा, आपको शॉर्ट टर्म में कोई इम्पैक्ट नहीं होएगा आपकी गाड़ी पे. तो प्लीज़ ये चीज़ भी एक ध्यान रखने वाली बात है. आते हैं व्हीकल्स की प्राइस पे. तो व्हीकल की प्राइस पे जो इम्पैक्ट आया है, अकॉर्डिंग टू द मार्केट सर्वे, पेट्रोल गाड़ियों की प्राइसेस 10 to 20,000 बढ़ी है, वेराज डीजल कार्स की प्राइसेस 80 to 1 लाख बढ़ी है. और इसका एक और सेगमेंट आज के हमारे लाइव ब्लॉग पे श्रेय कवर करेंगे. तो आई हाँ, रिक्वेस्ट मैं यू ऑल तब टू आपको इन डिटेल बताऊंगा कि हाँ। यस. एक छोटा सा क्वेश्चन है राहुल. यस. Like मैं एक BS4 गाड़ी चला रहा हूँ already. So when I drive to the petrol pump living in a NCR region or any metro region, so driving to the petrol pump, reaching out to the petrol pump, do I have an option to opt out for a BS4 or BS6 fuel on my choice? Like, No, can I opt no, for a BS4? not at all, because putting a BS4 fuel in your BS6 vehicle does damage your car in the long run. So that is why government has made this rule that on all the petrol pumps across the country, you will only and only have BS6 compliant fuel. As I said Earlier, earlier, what was happening, if I may say so, because हाँ. earlier what was happening कि Delhi NCR में government was already testing the BS6 fuel even before launching the BS6 norms or making it mandatory. So in Delhi NCR, BS6 fuel is going on from, like, if you can say, from the beginning of 2020. And after the implementation of BS6,
the BS6 fuel is now supplied all across the country. You won't find any pumps selling the BS4 fuel, I guess. Hardly there will be any fuel pump out there who will be selling like Correct. BS4 fuels. Correct. I guess Yeah. there's a question on our All bullet. Yeah, right. there's a question. Yeah. Akshay? Yeah. Just a moment. Uh-huh. Yeah. So we have a question from Mr. Pradit Motwani. Is sulfur also used in higher octane fuels, say 95 or even higher 98 octane? So yes, Pradit, sulfur is used for combustion of the fuel. So these specific fuel types or the higher octane numbers like 95 and 98 specifically that you've mentioned. So it is not limited to the octane number or the cetane number of the fuel. It is Right. definitely present in the fuel. It has a specific chemical combination. The fuel needs to be that. The engine requires that basic bit of sulfur for the combustion. So So Prerit in once the sulfur is entered into the combustion chamber, we have certain norms that BS6 also reflects regarding the sulfur emissions. So like Rahul has already put up that now the BS6 compliant fuels have a lesser sulfur amount, but yet till date, it has already been more than 20 years that we have been following certain emission norms. Till date, it has never been regulated by the government of any country to actually eliminate sulfur from the fuel because it is a basic requirement of the engine. Yes, you can reduce it to an extent, but it is a definite requirement for the engine for combustion. I hope that basically, is clear, Prerit. Yeah. Prerit, in layman's language, sulfur is added to the crude oil that has been excreted out Right. by the company. So it is a has to be there ingredient to any Must fuel. have additive in the fuel. Yeah. Right. Moving on towards bikes, what is the difference between a BS4 and a BS6 bike? I would like to hand this discussion to Vanshug. जैसा राहुल ने बताया अभी कि BS4 और BS6 में क्या फ़र्क होता है, बाइक्स में भी सेम ही फ़र्क होता है, कोई कुछ ये नहीं कि बाइक्स में कुछ और फ़र्क होता है, उसमें भी हमने एमिशन ही कम करने होते हैं। वही जैसे राहुल ने बताया कि कुछ परसेंट हम करने कम कर रहे हैं BS4 से BS6 में कि ये एमिशंस कम हो। जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड है, इसको हम 25% कम किया है गवर्नमेंट ने कि BS4 में अगर 80 mg पर बाइक्स को किलोमीटर था, लेके हाँ बाइक्स को लेके उसमें अगर 80 mg पर किलोमीटर था तो 25% कम करके 60 mg पर किलोमीटर करा है BS6 में। अब वो किया कैसे है, बहुत अलग अलग तरीके हैं करने के। जैसे पहले कार्बोरेटर्स आते थे BS4 में, अब वो नहीं आते। अब पहले अभी भी थोड़ी बाइक्स दे रही थी बीच में, बट अब ये है कि अब सब इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन पे ही काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल है बुलेट, और उन्होंने तो कर भी दिया था, जैसे स्पोर्ट्स बाइक हो गई, थोड़ी हाई एंड बाइक हो गई, उन्होंने करा, बट बेसिक बाइक हमारी जैसे हम लेते हैं बुलेट, तो उन्होंने नहीं किया था। BS6 आने के बाद उन्होंने भी कर दिया। पहले वो BS4 में थोड़ा ट्राई कर रहे थे कि हम कुछ बाइक्सों में उन्होंने दिया, जो थी एक दो बाइक, जैसे 500 में दिया, ट्राई किया, 350 में दिया, बट सब में नहीं दिया। बट अब BS6 में वो हर एक बाइक में, जब वो 650 हो या 350 हो, उन्होंने वो फ्यूल इंजेक्शन पे ही काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन पे ही। और उसके बाद बात करेंगे अगर हम, तो ये कि BS6 में फ़ायदे हैं पर थोड़े नुकसान भी हैं। बाइकों में, गाड़ियों में भी हैं वही नुकसान और वही फ़ायदे, पर ये है कि बाइकों में थोड़े हमें इजीली पता लग जाता है कि हाँ ये फ़ायदे हो रहे हैं। जैसे वाइब्रेशन, हर एक बाइक की BS4 की वाइब्रेशन थोड़ी सी ज़्यादा है और BS6 की कम है। आप कोई भी बाइक ले लो, नॉट की बुलेट है सिर्फ, बट कोई भी सुपर बाइक ले लो, कोई छोटी बाइक जैसे स्प्लेंडर वगैरह भी हो गई, सब में यही रहेगा। BS6 में जो वाइब्रेशन हो गई और जो थोड़ी साउंड होती है, वो सब में कम आएगी। उसके बाद जो इंजन है वो थोड़े शांत है, मैं कहूँ तो। पहले बहुत लाउड इंजन होते थे, जो स्पोर्ट्स बाइक लवर है, हार्शनेस नहीं है अब, हाँ, हार्शनेस नहीं है अब इंजन्स में। और जो स्पोर्ट्स बाइक लवर है उन्हें तो Fine, बहुत man. दुख हुआ था BS6 आने के बाद, क्योंकि आधे से ज़्यादा तो उनकी आवाज़ चली गई थी।
पर वंश एग्जॉस्ट भी तो डलवा ही सकते हैं यार। एग्जॉस्ट डलवा सकते हैं, वो तो वो फिर अलग अब बात है कि हाँ अब पुलिस गवर्नमेंट पॉलिसीज ऐसी है कि आप पकड़े जाओगे अगर आप बिल्कुल एग्जॉस्ट भी द थिंग डलवाओगे इज तो। कि जो स्टॉक जो चीज ऑलरेडी आती हाँ थी अब वो मिस करते हैं लोग, क्योंकि हर हाँ, जना मॉडिफिकेशंस की तरफ नहीं जाता। सबको सही शोर नहीं बात। चाहिए होता। कुछ पहले भी थे जो करवाते थे, लोग अभी भी करवा रहे हैं जिनको पसंद है, हाँ हाँ अभी वो हम है खुद भी बस। रखते हैं। और जो प्राइस है, इससे हाँ हाँ श्रेय। इससे माइलेज वगैरह पे या पिकअप पे भी कोई फर्क आया क्या बाइक्स में भी? नहीं, माइलेज में कोई फर्क नहीं आया। माइलेज माइलेज में में नहीं आया, थोड़ा बहुत क्योंकि मतलब गाड़ियों को लेके माइन्यूट बहुत सा। सारे लोग ये चीजें करते हैं हाँ कि भाई हम्म, बट माइलेज में फर्क गाड़ियों हो में गया भी, या पावर डिलीवरी में हाँ फर्क हो गया। बहुत कार्स में भी देखो माइन्यूट है। ऐसा है हाँ इट ओनली डिपेंड्स अपॉन engine to engine and your हाँ, driving style यप totally। यप 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 हम्म यप, पावर एंड एफिशिएंसी totally depends upon you। एग्री पावर विद में हाँ राहुल। जरूर कहूँगा, पावर में मतलब जरूर कहूँगा बेसिकली जो मिथ है कि भाई कि BS6 लाने के बाद कि भाई हमारी गाड़ी की एफिशिएंसी कम हो गई है या पावर आउटपुट हाँ, कम हो गया है, वैसा पावर आउटपुट हो सकता है एक लेवल तक हो गया बिकॉज उन्होंने क्लीनर फ्यूल क्लीनर बहुत एनर्जी या रिस्ट्रिक्शंस करी हैं उन्होंने। हाँ नहीं करी नहीं है, बट नहीं, मैं ये पावर जो हमारी आउटपुट है वो बढ़ा है BS6 में। जब माइन्यूट बढ़ा है पर बढ़ा है। कुछ ना कुछ बाइकों में ये तुमने मतलब गाड़ियों में और बाइकों में दोनों में है कि इंक्रीज हुआ है, थोड़ा बहुत ही हुआ, बिल्कुल हम्म, माइन्यूट सा कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट कम नहीं हम्म, हुआ ना, उतना है, थोड़ा सा बढ़ा है। अब पॉइंटों में ही बढ़ा है वो तो, बट जितना भी है चलो। और प्राइस जो है वो ऑब्वियस है, BS6 का जितनी भी बाइक्स आई हैं या कार्स आई हैं, बढ़ हमें हम्म, इंक्रीमेंट ही मिला है प्राइजेस में, क्योंकि इतने सारे, एक तो उन लोगों ने सामान लगाया उसमें, अलग अलग टाइप की अलग अलग चीजें। फ्यूल चलो उतना ही है, फ्यूल तो वैसे बढ़ रहा है, बट हम्म, कंपोनेंट्स जो है वो बढ़े हैं। जैसे कार्बोरेटर था, हम्म। कार्बोरेटर आर सस्ता एन आता डी था। पे आर एन डी पे हाँ, एक्सपेंडिचर वही एक्सपेंडिचर वही बहुत सब। हो गया उनका, वो सब करके जो मिसलेनियस खर्चा इतना हो गया बेसिक कि कॉस्ट उन्हें ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हो हम्म, गया वो ज्यादा बढ़ चुका है वो उसका बढ़ाना ही BS6 पड़ा, का। Right. वो बढ़ाना ही हाँ, पड़ा उन लोगों को। बस राइट राइट राइट। यही सब था बाइक और BS4 और BS6 में, ज़्यादा फर्क नहीं है गाड़ियों और बाइकों में, सेम ही चल रहा है जो है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेंटेनेंस। और मेंटेनेंस क्या हो रही है, क्या नहीं हो रही, क्या करेंगे मेंटेनेंस में, कैसा एक्सपीरियंस है मेंटेनेंस का लोगों का भी, और एज अ ओनर मतलब एज अ सर्विस सेंटर वाला भी क्या चाहता है मेंटेनेंस में, कि उसको क्या दिक्कत आ रही है, क्या नहीं दिक्कत आ रही। श्रेय, अप टू यू। बहुत से लोगों का ये आजकल डिस्कशन चल रहा है कि भाई, और ज्यादातर मैन्युफैक्चरर्स को भी अगर आप देख रहे होगे तो ऐसा हो रहा है कि आजकल बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स या तो पेट्रोल ओनली पे शिफ्ट हो रहे हैं या यप, डीजल को उतने अच्छे से प्रमोट नहीं कर रहे जितना अच्छे से BS4 के टाइम किया करते थे। सो बेसिक लोगों को या जनरल पब्लिक को ये डिफरेंस समझ नहीं आ रहा कि मारुति फॉर एग्जांपल जो इंडिया का सबसे बड़ा ब्रांड है, कि वो इतना सक्सेसफुल होके, या डीजल जो इंडियंस की मेरे हिसाब से एक तरीके से फर्स्ट चॉइस बन चुकी थी हम्म, BS4 के टाइम पे, वो इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले लिया उन्होंने कि दे विल टोटली स्टॉप मेकिंग डीजल कार्स एंड वो सिर्फ पेट्रोल पे फोकस करेंगे आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ BS6। तो देयर माइट बी सम रीजंस कंपनी के लिए भी और शायद कंज्यूमर्स के लिए भी, जो सोच के कंपनी ये सब डिसीजन ले रही है। चाहे अब फोक्सवैगन स्कोडा इनको देख लीजिए, चाहे आप इनकी हाई एंड गाड़ियां भी ले लीजिए, तब SUVs भी ले लीजिए, किसी में भी अब ये डीजल ऑप्शन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, अब सिर्फ इनके पेट्रोल ऑप्शन ही आ रहे हैं मार्केट। तो इसका सबसे बड़ा रीजन ये रहा है कि पहली बात तो हम ये जाने कि भाई पेट्रोल BS6 और डीजल BS6 में फर्क क्यों है, कि क्यों कंपनीज इससे दूर हट रही हैं या कई कंपनीज ऑप्ट नहीं कर रही। बेसिकली जैसा कि राहुल ने बताया कि हमें कितना रिडक्शन करना पड़ रहा है एमिशंस के अंदर, जो टॉक्सिक एमिशंस हो रहे थे उसके अंदर कितना हमें रिडक्शंस करने पड़ रहे हैं डीजल के अंदर स्पेसिफिकली। अगर वो 20 से 25% है पेट्रोल के लिए, तो वो 80% है डीजल के लिए। इतना ज्यादा एमिशन कंट्रोल करने के लिए यू डेफिनेटली हैव टू मॉडिफाई द इंजन दैट यू ऑलरेडी हैव, You need to चाहे put up उसके a आप lot of cost in it. राइट, बिकॉज यू नीड टू ऐड मे बी फ्यू पार्ट्स, मे बी फ्यू फिल्टर्स एंड ट्यून द engine differently to make it a BS6 compliant engine. So what is happening in diesel engine is कि डीजल इंजन के अंदर अब एक DPF फिल्टर लग रहा है, जिसको डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर कहते हैं बेसिकली।
BS6 सिर्फ डीजल में ही लगता है, पेट्रोल के अंदर ऐसा कोई फिल्टर नहीं लगा है। व्हाट दैट फिल्टर डज इज कि वो जितने भी कार्बन एमिशंस हो रहे हैं गाड़ी के, वो उससे उसके थ्रू पास ऑन होके उसको एक्स्ट्रा फिल्ट्रेट करके बाहर एग्जॉस्ट के थ्रू, हाँ बाहर एग्जॉस्ट के थ्रू एग्जिट हो रहा है। तो उसके अंदर क्या होता है कि DPF फिल्टर की जो कॉस्टिंग है या उसका पूरा इम्प्लीमेंटेशन हो गया, उस वजह से जो कॉस्टिंग है वो बहुत अप चली गई। अब इस कॉस्टिंग का डायरेक्ट इम्पैक्ट आ गया मेंटेनेंस। कंज्यूमर्स के ऊपर कि भाई मेंटेनेंस पे भी आया, कंज्यूमर्स पे भी आया कि जैसे आपने बताया कि जो कॉस्टिंग है वो 10 से 20 हजार पेट्रोल की बढ़ी, और हम्म 80 से 90 हजार या लाख रुपए तक डीजल्स की बढ़ गई, क्योंकि डीजल पे हम्म कंपनी को इतना एक्सपेंडिचर करना पड़ गया हम्म BS6 कंप्लायंट करने के लिए या उसमें ऐसे फिल्टर्स डालने के लिए, तो ऑब्वियसली द कॉस्ट हैज गॉन अप। साथ ही साथ दिस इज द रीजन कि कई कंपनियां उतना इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहती या उतना स्पेंड नहीं करना चाहती, या उनके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग BS6 इंजन है नहीं, एंड इट टेक्स टाइम टू डेवलप अ BS6 इंजन, and for that good period of time they are switching to petrol. Maybe they'll come back as a diesel brand also one day, but for now they have switched to petrol only. ओनली। Second thing that comes is कि क्यों BS6 के अंदर अब एक ये डिबेट आ गई है कि हम लोग सोचें कि हमें पेट्रोल गाड़ी लेनी है कि डीजल गाड़ी। क्योंकि इसके अंदर ऐसा है कि पेट्रोल गाड़ी अगर आपकी रनिंग कम है, हमेशा से यही होता आ रहा था, चाहे BS4 हो चाहे BS6 हो, कि अगर आपकी रनिंग कम है तो आप पेट्रोल गाड़ी लो, मेंटेनेंस कम रहता है, सब कुछ रहता है। अब ये वाला फैक्टर और बढ़ चुका है BS6 आने के बाद, क्योंकि अगर आपकी रनिंग ज्यादा नहीं है और आप एक डीजल BS6 ऑप्ट कर लेते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, जो DPF फिल्टर है, ओवर द शॉर्टर रन्स दैट यू ट्रैवल, जो कार्बन डिपॉजिट है DPF के अंदर वो रैपिडली या डे बाय डे इंक्रीजिंग, मतलब बढ़ता रहेगा। एंड DPF की सर्विस का क्या सीन है कि भाई आपको you have to go for a longer run, you have to go for a longer drive। अब फॉर एग्जांपल अगर आप 200 250 300 किलोमीटर एक स्ट्रेच में गाड़ी चलाते हैं, तो आपकी गाड़ी या आपका जो फिल्टर है वो एक सर्टेन टेम्परेचर अटेन कर लेगा, जिसकी वजह से जो DPF फिल्टर है वो ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाएगा, जो उसके अंदर कार्बन डिपॉजिट है दैट विल गेट क्लीन पार्टिकुलेट ऑटोमेटिकली। कर देगा वो बेसिकली। राइट। बट अगर आपका शॉर्टर डिस्टेंस ही ट्रैवल है, और अगर आप एक BS4 यूजर रहे हैं पहले से और आप उतना ध्यान नहीं दे पाते अपनी मेंटेनेंस पे, तो ओवर द पीरियड क्या होगा कि जो कार्बन डिपॉजिट है वो बढ़ता रहेगा, और दैट विल एंड अप चोकिंग योर DPF फिल्टर, जिसकी सर्विसिंग कॉस्ट या उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट काफी हाई रहेगी एज कंपेरिजन, इफ यू कंपेयर इट टू द BS4 इंजन। सोली इफ यू टॉक अबाउट द फिल्टर ओनली, तो वो कार की कॉस्ट के अराउंड 10% भी कॉस्ट कर सकता है जब आप एक नई गाड़ी परचेज करते हैं। सो दैट इज अ बिग पॉइंट टू कंसीडर इफ यू आर बाइंग अ डीजल BS6, कि आपकी एक्चुअली उतनी रनिंग है और यू एंड डू हैव द टाइम to spend more money and the time, basically both the things, to on maintenance of your car. So that has become a very big point to consider कि आपको BS6 डीजल लेना है या पेट्रोल लेना। मेरे ख्याल जिनकी Okay. लॉन्ग रन है वो लोग हम्म स्टिल दे वुड प्रेफर, बिकॉज लेट्स से जैसे मेरे घर में हमारी दोनों गाड़ियों की रनिंग हम्म 70-80 किलोमीटर्स पर डे है। हम्म तो ऐसे लोग, ऐसी फैमिलीज जिनकी इतनी रनिंग, आई गेस वो लोग स्टिल डीजल प्रेफर करेंगे टिल द टाइम इन द लॉन्ग रन गवर्नमेंट डिसाइड्स टू लोअर डाउन द बट प्राइसेस ऑफ पेट्रोल। बट इसके अंदर राहुल एक चीज है कि आपकी 70 किलोमीटर की रनिंग है, अगर आप एक दिन की कंसिडर कर रहे हैं, आप हम्म 35 किलोमीटर जाएंगे, गाड़ी रोक लेंगे, हम्म। एंड फिर आप वापस 35 आएंगे, तो गाड़ी को उतना लंबा स्ट्रेच नहीं मिल रहा है अभी भी, अगर आप उस तरीके से देखें। अगर हम DPF की हम्म बात करें, उसकी मेंटेनेंस की बात करें, गाड़ी उसको एक लंबा रन कंटिन्यू नहीं मानेगी, क्योंकि जो डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर को जो एक टेम्परेचर चाहिए खुद से क्लीन होने के लिए, वो आप अटेन नहीं हम्म करेंगे 35 किलोमीटर की ट्रैवलिंग के अंदर। सो हम्म एट द एंड अगर आप 70 किलोमीटर भी जिनका ट्रैवल कर रहे हैं, तो उसके बाद भी आपको उसकी मेंटेनेंस पे एक्स्ट्रा ध्यान रखना ही पड़ेगा। यू कांट बी लाइक कि वो ऑटोमेटिकली क्लीन हो रहा है क्योंकि आप लॉन्ग रन पे जा रहे करेक्ट। हैं। लॉन्ग रन शुड बी लाइक फॉर 200 किलोमीटर 150 किलोमीटर इन स्ट्रेच, जो एक गाड़ी को एक सर्टेन टेम्परेचर तक लेके आएगा, जिसकी वजह से वो ऑटोमेटिकली क्लीन होता है।
Right. So that is a big factor now. तो वही है कि अगेन लाइक कमिंग बैक टू द कंपैरिजन BS4 BS6 के बीच में, जो आई थिंक आज से 2 साल पहले तक क्वेश्चन रहता था कंज्यूमर का कि यार रनिंग 50-60 किलोमीटर है, तब भी द रिटेलर्स वर सजेस्टिंग डीजल व्हीकल्स. बट राइट नाउ थोड़ा सा सिनेरियो शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स लॉन्गर जर्नीज, क्लोज टू 70 to 100 किलोमीटर ऑन वन साइड. तो अब थोड़ा सा शिफ्ट मार्केट में भी आया है. प्लस अभी मेरे हिसाब से पर्सनली कंज्यूमर इज ऑल्सो नॉट रेडी टू स्पेंड अ कंप्लीट डे ऑन द मेंटेनेंस बिट. यार मैं हमेशा गाड़ी का ख्याल ही रखूंगा तो मैं चलाऊंगा कब. स्पेसिफिकली पहली चीज तो ये है. लेमैन तरीके से अगर हम बात करें अक्षय, तो बहुत सारे मिड एज लोग हैं, चाहे आपके फादर हो चाहे मेरे फादर हूँ, अगर उनकी मैं बात करता हूँ, वो लोग इतना फोकस उनको आज वो दे आर ड्राइविंग फ्रॉम पास्ट 25 years 20 years, तो उनको नहीं वो है कि भाई उस तरीके से उस चीज का ध्यान रखना है. कल को अगर वो ब्लिंक भी करता है और कुछ ऐसा वार्निंग साइंस भी आती है, दे आर नॉट यूज्ड टू दैट एंड दे डोंट केयर अबाउट द कार सो मच कि भाई अगर इसको इस टाइम पे मेंटेनेंस करानी है या अब ये करवाना है. प्लस उसके अंदर साथ ही साथ अब जो हमें डीजल इंजन में एड ब्लू भी ऐड करना पड़ता है एड ब्लू भी lubrication यार, के लिए, उसको भी हमको मॉनिटर पूरा उसकी रखना भी पड़ता है. कॉस्टिंग करनी पड़ती है, उसकी कॉस्टिंग बढ़ गई आपकी मेंटेनेंस के अंदर. साथ ही साथ उसकी भी आपको फ्यूल लेवल की तरीके से या आपके इंजन ऑयल की लेवल के तरीके से उसको मॉनिटर करते रहना पड़ता है कि अगर आप खराब एड ब्लू चला रहे हैं या पुराना चला रहे हैं या लो लेवल पे चला रहे हैं, दैट विल आल्सो इम्पैक्ट योर इंजन. So there are too many factors to be which we need to consider to maintain a diesel BS6. शायद यही हमारे प्रीत मोटवानी को आंसर मिल सकता है, क्योंकि उनका यही क्वेश्चन था कि डीजल इंजन लॉन्ग टर्म पे क्या रहेगा, हमें चेंजेस करने पड़ेंगे डीजल इंजन में या नहीं, और एनवायरनमेंट के लिए प्रेरित क्या इसके रहेगा. अंदर प्रेरित इसके अंदर ऐसा है कि अभी BS6 के जो नॉर्म चल रहे हैं वो स्टैंडर्डाइज एक चल रहे हैं. उसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट आपको एक सेट गाइडलाइंस दे देती है एंड जो भी टेस्ट कंपनी रन करती है या करते हैं जो भी उस पे, तो वो एक लैब में ही टेस्ट होता है इंजन पे एंड देन दे गेट अप्रूव कि वो BS6 के नॉर्म्स को, जो गाइडलाइंस है गवर्नमेंट की या जो भी BS6 के नॉर्म्स हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे. व्हाट विल कम नेक्स्ट इज कि BS6.2 जो गवर्नमेंट आने वाले टाइम में मे बी इम्प्लाई करेगी, जिसकी अभी ज्यादा नहीं आई है डिटेल्स, बट उसके अंदर गवर्नमेंट का ये फैक्टर, हाँ गवर्नमेंट का जो ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है कि उसके अंदर जो डीजल इंजन की टेस्टिंग होगी या BS6 की कोई भी इंजन की डीजल या पेट्रोल की टेस्टिंग होगी, वो रियल वर्ल्ड टेस्टिंग को कंसिडर करेंगे रादर देन लैब टेस्टिंग को. एंड रियल वर्ल्ड में आप कोई भी इंजन को टेस्ट करोगे तो it will be much more harder, much more difficult for the manufacturer to meet that guidelines, if I say, to meet that guidelines of the BS6. And especially जब हम डीजल के अंदर हैं, डीजल के अंदर ऑलरेडी कंपनीज ने इतना सब कुछ करके उसको अटेन किया है लैब के अंदर. So I guess they need to do more to attain it in the real world. So it can get difficult on them. I think it is a very clear example जो VW के साथ भी हुआ था. Though they were faking it, उनका their route of approach was a little different. Right. But again, जो भी उनके टेस्ट रिजल्ट्स थे वो सारे बेस्ड ऑन आइडल कंडीशंस, लैब कंडीशंस थे. एक्चुअली में जब वो गाड़ियां हुई थी, नाउ राइट नाउ द नेक्स्ट सेट ऑफ नॉर्म्स दैट विल बी कमिंग, इट विल बी वेरी सिमिलर टू द टेस्टिंग कंडीशंस इम्प्लाइड ऑन द VW केस. जो एक्चुअल रोड कंडीशंस है उसके ऊपर वो गाड़ी कितना डिलीवर कर पाती है. अगेन वी हैव अनदर क्वेश्चन. But guys, the point is that diesel in general is more polluting engine than compared to petrol. No, Prerit, I would like to clarify that there are two different aspects to it. Because in today's scenario, if we see from a manufacturer's point of view, or even as a consumer, जो कार्बन डाई emissions हैं दोनों गाड़ियों में, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों गाड़ियों के अंदर डीजल is a cleaner fuel in terms of carbon dioxide. 0.5 to 1% it is better per like gram per kilometer. Diesel की carbon dioxide emissions are lesser. But why diesel is considered harmful is because it emits soot and nitrous oxide. Nitrous oxide is not really that damaging to the environment,
it is more harmful to the human. So just because we have a lot of population of cars as well as humans in our country, so that is a bigger point to consider. And personally, I feel like मेरा personal belief है, like the technology that goes into manufacturing of a diesel engine is much more advanced. Will be. Certain backdraws are there, definitely. ये सारे emissions से related हैं. Otherwise, it is a I much would advanced technology. I would also And add that जो there भी are certain companies जिनका business ही diesel engines के ऊपर चल रहा है, जैसे कि जैसे कि Volvo हो गई. You pick up any car, you pick up any model of that car, D3, D4, D5, they have only and only diesel engines running into the market. So yes, right, there is, to an extent, there is a need. yes, it is less polluting, but the amount of pollution that it anyway makes, it is a little more harmful for the humans or any living being on this earth. उसके साथ साथ we left out on a couple of questions before that. We'll quickly wrap up after this. So Ayushi has a question specifically to Rahul. What engine is No, in that's a Skoda fine. Octavia VRS? VRS. So I see it has a 2-liter turbo petrol engine with a horsepower. The new one has a horsepower of 245. And I am also interested in knowing that why this question in middle of a BS6 discussion. So Maybe yeah. she is asking that does VRS also comes with a BS6 engine or not? Yes, every vehicle on this. Yes, Ayushi, everything is now BS6 in India, and other countries it is Euro or any pollution norms there is. So just last one question. I think I can answer that. For bike specifically, does replacing the exhaust system in it, which will remove the catalytic converters, like a VNH or a Cobra exhaust, does the BS6 compliant bike not be compliant anymore? That's right, Prerit. It won't be compliant, but again, it is dependent on a lot of parameters because most It of the won't be emissions are compliant. dependent on the catalytic converter or selective Correct. catalytic converter. Right. So if we directly eliminate those parts, it won't be compliant anymore. But again, there is no specific parameter or there is no specific amount of emission that you get. NCR में हम गाड़ी बाइक चला रहे हैं, we know how the pollution checks are conducted. It is directly linked कि आपका अगर exhaust tip change है, you are done. Because that is the only point how चलो cops will catch you. खत्म, टाटा, बाय बाय. चलो. चलो, Thank you ठीक है, so much, time to guys. wrap Thank up. you for the wonderful session. You Thank guys you. asked many good questions, and I hope we have answered as many as we can, and we have, given justice to your Covered questions. almost every bit. Right. Thank Let's you so catch much, you on people. next Sunday on Auto Yes. Talk episode 3. 3. See you Same time. guys. Thank Bye. you Till then, guys. take care. Bye bye. Stay in good health. Bye bye. Yeah. रब Bye. रखा. Like, share, subscribe to please. वो भी जरूरत है हमें थोड़ी मोटिवेशन के लिए. चलो दोस्तों, मिलते हैं जल्दी. Surely. हाँ. Bye bye, guys. Bye. Take care. हाँ.